رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ منبر رسول پر تمام تر ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہے۔ علماء اہل سنت حفاظ و قراء اور علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ کرے۔ یہ پوری جماعت وہ بابرکت جماعت ہے، اگر ایک بندہ دعا کر دے، باقی ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دے تو اللہ بگڑے نصیبے سوار دیتا ہے۔ یہ ہمارے رہنما بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، قائد بھی ہیں۔ مشورے کے طور پہ ایک بات کہوں گا، اپنے علماء کا احترام کرنا۔ یاد رکھیے گا، مجھے اور پورے عالم اسلام کو بے پناہ خوشی ہوئی، اللہ نے شرع سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑے امتحان میں ایک کامیابی عطا کی حضرت کو۔ اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسلوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے رہنما، اپنے قائدین کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء کو صرف مسجد کے مصلے تک سمجھا اور وہیں تک ان کو رکھا، اس وجہ سے اکثر ہم ذلیل و رسوا رہے۔ ورنہ ان موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سچے دل سے گواہی دینا، جتنے بھی فتنے حضور کی ذات پہ اٹھے یا قرآن کے خلاف آوازیں اٹھی، بتاؤ جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے، جنہوں نے ہمارا استعمال کیا، کس نے ہمارے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا؟ خدا کی قسم، تنخواہ 5,000 لیتے ہوں یا 7,000 لیتے ہوں یا 8 لیتے ہوں، حضور کے نام پہ کفن سر سے باندھ کے یہی جماعت سب سے پہلے آتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ یہ گدی کے، یہ کرسی کے وارث نہیں، یہ ودھائی پردھانی کے وارث نہیں، یہ حضور کے دین کے وارث ہے۔ حضور کے دین کے وارث ہیں۔ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بات اٹھی تھی یا رسول اللہ کیا ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس سے پہلے بھی تو ضرورتیں پیش آئی ہیں۔ فرمایا گیا ہاں آئیے، جب جب قوم گمراہ ہوئی ہے، جب جب دنیا تباہی میں گئی ہے، اللہ نے کسی نبی کو پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ دور نہیں آئے گا؟ کہا دور تو آئے گا، کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کام پہلے کے نبی کرتے رہے وہ میری بات کے علماء کرتے رہے ہیں۔ تو اسی ذمہ داری کو لے کر کے کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، ہم اپنے ان علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کو کہہ دیں فکر نہ کریں، قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ بزرگوں کی نسبت سے محفل سجی ہے، شکر رب کا۔ ہم ولی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، حضور کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ دامن بریلی کے احمد رضا کا سایہ کیے ہوئے ہے، اور یہ انہی کی نسبت کی بنیاد ہے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول کی شمع جل رہی ہے، ہاں جل رہی ہے۔ کچھ نہ سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے محسنین کو سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے ہم پہ احسان کیا، ہم برابر میں میٹر لے کے کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں میں مقابلے نہ کرایا کر، یہ فیصلہ وہ کرے جو دونوں سے بڑا ہو، اور اگر چھوٹے ہو نا تو پھر یہی بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ اللہ نے ہمیں ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے، اور سنیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم وارث پاک بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی ہمارے ہیں، بریلی کے احمد رضا خان بھی ہمارے ہیں۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی آڑ میں کوئی آگ لگائے تو اس کا مسلک سے لینا دینا نہیں، اور مسلک کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے بریلی نے ہمیں سارے بزرگوں کا احترام سکھایا ہے، جو جس سے جتنی زیادہ عقیدت رکھتا ہے اس بزرگ کا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملا کرتا ہے۔ تو میں تو یہی چمن چاہتا تھا کہ اسی محفل میں دمدار کا بھی نعرہ لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگے، یہی ایک چمن ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم عقائد میں، فکر میں، نظریات میں امام احمد رضا کی
ताबेदारी करते हैं और उन्हीं की दी हुई फिक्र की हम पाबंदी करते हैं। यही वजह है हर वली से हम प्यार करते हैं और हम वलियों के मानने वाले हैं। शुक्र है हमारे दामन पे किसी वली की गुस्ताखी का दाग नहीं है, किसी अल्लाह वाले की तौहीन का दाग हमारे दामन पर नहीं है। हम हर अल्लाह वाले से प्यार करते हैं इसलिए कि वो अल्लाह वाला है, इसलिए नहीं कि वो हमारा है जी अल्लाह, इसलिए नहीं कि वो हमारा है, इसलिए कि वो अल्लाह वाला है। और हम इसलिए सिर्फ अल्लाह वालों से प्यार नहीं करते कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए, अल्लाह करे ये झगड़े खत्म हो जाए और सारे हुजूर की चौखट पे आके इकट्ठे खड़े हो जाए, बस यही तमन्ना अपनी रहती है। हम सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कादरी बुजुर्गों से कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। अगर यही नजरिया इमाम ने दिया होता ना तो बरेली वाला कभी अजमेर वाले का नारा ना लगाता। लेकिन जानते हो बरेली वाले ने क्या कहा था? बरेली वाले ने कहा था जब दुआ कहीं कबूल ना होती हो ना तो फिर अजमेर शरीफ चले जाया करो, अजमेर वाले की चौखट पे सबकी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो हमारी जो निस्बतें और अकीदतें हैं ना, इस बुनियाद पर नहीं कि हमारे सिलसिले में आते हैं, इस बुनियाद पर है कि वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाला मिल जाए उससे मोहब्बत करनी है, उससे मोहब्बत करनी है। पूरी जिंदगी हमने करामतें सुनी है, आज जिसकी महफिल है ना वो तो करामतों का ताजदार है, जिसकी उठती बैठती चलते फिरते करामतों का ज़हूर होता था। मैं शुक्र अदा करता हूं अपने रब का कि उसने हमें बरेली वालों के बड़े करीब किया है, बड़े करीब किया है। मैं तो खुल के कहता हूं भाई किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा आके बैठ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो माल है वो चोरी का नहीं है, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है और एक नंबर का माल है, एक नंबर का माल। अगर सोने की बात करें तो 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट है, एक नंबर का माल है। यहां चोरी का मसला ही कोई नहीं, कोई भी बैठे, लेकिन शर्त इतनी है ना तासुब का चश्मा हटाएं, इंसाफ की ऐनक लगाएं, फिर देखें ये बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। क्या बात है। खुदा की कसम महफिल पूरी होते होते ना वो भी मुस्तफा का गुलाम होकर उठेगा, ठीक है ना। कई बार एक बात कही जाती है कि बरेलवी लोग गाली देते, हम गाली नहीं देते, बदकिस्मती से तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती है, हाँ, तुम्हारी हरकतें ही गाली। क्या बात है ना। मिसाल के तौर पे काने को काना कह दो तो कहता बदतमीजी कर दी, अंधे को अंधा कहता तो कह दो तो कह देता बदतमीजी कर दी। ना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, अगर काले को काला दिखा रहा है तो गलती आईने की नहीं है ना, ये तो फिर आपकी सूरत का मसला है। बदलें अपने आप को, रवैये ऐसे करें कि सब तुम्हें हुजूर का कहना। दुख नहीं होता, बड़ी तकलीफ हुई 12वीं में अभी भी झंडे उतारे गए, कहा जाता भाई थोड़ा सा बात ना किया करें, तकलीफ होती है ना, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता न यूं रसवाइयां होती। बड़ी तकलीफें दी गई, जुलूस भी निकला कुछ जगहों पे, दूसरी जमात ने भी जुलूस निकाला। मुझे तो खुशी हुई क्या है जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन गौर से देखा काली पट्टियां बंधी थी, सुन्नियों के हाथ में हरे झंडे थे, उनके हाथ में काले झंडे थे। क्या बात है, कौन मर गया भाई? काय का गम का नहीं, आज हुजूर की वफात हुई थी। मैंने कहा गैरत कर यार, शर्म कर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ये कहते मेरा नबी जिंदा है तो तू नबियों के इमाम का उम्मती है, तू ये झंडा लेके घूमेगा मेरा नबी मुर्दा है? कैसी हरकतें हम कर रहे हैं, जरा सोचें जरा। मैं दुख देना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं यार, समझाना चाहता हूं। काले झंडे लेके चले, का हुजूर का विसाल हुआ था, मैंने कहा दुख उसका किया जाता है जो चला जाए, जो जाने के लिए नहीं हमेशा रहने के लिए आया हो उसका दुख नहीं किया जाता, उसका दुख नहीं किया जाता। आप उम्रे पे जा रहे हैं, मुझे कसम खा के बताएं किस नियत से जा रहे हैं? क्या ये सोच के जा रहे हैं हुजूर मुर्दा है, या ये सोच के जा रहे हैं कि हुजूर जिंदा है? हर जाने वाले का नजरिया यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। कलमा उन्हीं का पढ़े हो और उन्हीं की घटाने पे लगे, मगर याद रख तू घटाए से किसी के
न घटा है न घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा है, जिसके रुतबे खुदा ने बुलंद कर दिए। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर आने वाली घड़ी तेरी इज्जतों में इजाफा करती रहेगी। इतनी अजमतों का मालिक मेरा नबी है और हमारी जमात का बंदा, जबकि हुजूर की अजमतों पे उंगलियां उठ रही। लोग हुजूर की तहजीब की बात करते हैं, उनके अखलाक उनके किरदार पे बात करते हैं। हमारी जमात के लोग टोपी पहन के दाढ़ी लगा के कहते नहीं नहीं जी वो तो हमारी तरह है, तुझे देख के दीन बदनाम होगा। उन्हें देख के लोगों ने कलमे पढ़े, कलमे पढ़े। क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात करते हो? जानते हो हुज्जतुल इस्लाम बरेली की शान, इमाम अहमद रजा के घर का एक चांद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, आप चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। कपड़ा एक दिन गुजर के जा रहे, हवा ने झोंके ने उठ के लिया किया, हल्के से झोंके से आपके चेहरे का रुमाल हटा, किसी गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने कहा ये कौन है? कहा ये नकी अली के खानदान का चला जा रहा है। कहा ये मुसलमानों का रहनुमा है। उसने दौड़ के दामन थामा, कहा हुजूर बस कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का नूर ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का नूर कैसा हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का, मुख्तार का आलम। मैं जानता हूं कि सुई ढाई के ऊपर चली गई है, अब ये सुनने का नहीं सोने का वक्त है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुफ्ती साहब। ये महफिल अभी लग रही है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, और बता दूं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है, तवज्जो हो गई है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। मैं कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जो आह करे दिल से। हाँ भाई मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है ना। उनकी चौखट पे खुदा की कसम खड़े हैं। मेरे इमाम ने तो हद कर दी। लोगों ने ना हम्द लिखी और अपने अपने तरीके में, ये बुजुर्ग बैठे हैं, पहले पढ़ाई जाती थी एक हम बकरी गाय भैंस बनाई खाने को दी दूध मलाई, है ना, एक हमद ऐसे पढ़ी जाती थी तो लोग इस तरह हमद करते थे। लेकिन जब मेरे रजा ने हमद की तो कलम तोड़ दिया। कहते हैं बात जब रब के हमद की हो तो दूध की क्या बातें करनी, जितनी बड़ी जात की बात है फिर उतना बड़ा कारनामा जिक्र हो। मैंने कहा बताएं फिर कैसे हमद हो? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कलम तोड़ दिया। कहते हैं वो कबारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आजम मगर आमीना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हाँ यही वजह है आज पूरी दुनिया मेरे इमाम के गीत गा रही है, पूरे दुनिया के अंदर मेरे इमाम के गीत गाए जा रहे हैं। आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश इतनी सी है, हमारे ये बुजुर्ग जो है ना जिनकी हमने आज तक करामतें पढ़ी और सुनी, करामत क्या है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अजर। क्या बात है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला रब की तरफ से अजर। आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, अल्लाह आपको करामत का नूर अता फरमा दे। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी को करामत कहते हैं। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन हमने थोड़ी सी ना चूक की है, हमारी कौम सिर्फ करामतों पर रह गई, इस्तिकामत को जाने ही नहीं, इस्तिकामत को जाने ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आया होगा? आपको क्या लगता है कोई यूं ही कोई मुहियुद्दीन सुभानी बन गया होगा? नहीं, बाप दिन भर रोजा रखे रात भर कयाम करे तब अल्लाह उस गोद के अंदर उस आंगन में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमा। अल्लाह अल्लाह